वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 7p4। 7p4 बाय फार्मूला वी नो 7p4 का मतलब है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 4। फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 gets cancelled and remaining part is 7 6 ja 42 into 5 4 ja 20 that is equal to 840। सेकेंड है 18p2। 18p2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 18 माइनस 2 that is equal to 18 into 17 into factorial 16 upon factorial 16 cancelled and answer is 17 18 into 17 that is equal to 306। थर्ड है 6p6। 6p6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6 that is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो आंसर इज फैक्टोरियल 6। 6 5 जा 30 30 4 जा 120 into 6 that is equal to 720। सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 10p3 is equal to 9p3 plus 3 into 9p2। 10p3 की वैल्यू हम कंसिडर करें अगर LHS को 10p3 is equal to फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3 is equal to 10 into 9 into 8 into फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। This is equal to 8 9 ja 72 10 ja 720 and right hand side if we consider right hand side 9p3 plus 3 part of 9p2 is equal to factorial 9 upon factorial 9 minus 3 plus 3 into factorial 9 upon factorial 9 minus 2 factorial is equal to 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon factorial 6 plus 3 part of 9 into 8 into 7 factorial upon factorial 7। This is equal to 504 plus 9 8 ja 72 into 3 216 that is equal to 720। So we can write from equation first and equation second 10p3 is equal to 9p3 plus 3 part of 9p2। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड n इफ np6 is equal to 3 into np5। वी नो np6 का मतलब है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6। ये इक्वल है 3 पार्ट ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5। फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल n माइनस 5 is equal to 3 part of factorial n minus 6। This implies n minus 5 को हम लिख सकते हैं n minus 5 n minus 6 factorial is equal to 3 into factorial n minus 6। This implies n minus 5 is equal to 3 implies n is equal to 8। सेकेंड है np2 is equal to 20। np2 we know factorial n upon factorial n minus 2 that is equal to 20। फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 implies n minus 5 plus 4
n minus 5 is equal to 0. This implies n minus 5 n plus 4 is equal to 0. यहाँ से हमें n की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है, सो आंसर इज n इज इक्वल टू 5. थर्ड है 2np3 इज इक्वल टू n प्लस 1p3. इसको हम सॉल्व करेंगे. 2 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3. This implies 2 into factorial n upon factorial n minus 3 is equal to n plus 1 into factorial n upon n plus 1 minus 3, that is n minus 2 into n minus 3 factorial. ऐसा लिख सकते हैं n minus 2 के फैक्टोरियल को. अब यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. This implies 2 is equal to n plus 1 upon n minus 2, implies 2n minus 4 is equal to n plus 1, implies 2n minus n is equal to 5. फोर्थ है 2np3 is equal to 100 into np2. इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 is equal to 100 into factorial n upon factorial n minus 2. This implies factorial 2n को हम लिख सकते हैं 2n minus 1 2n minus 2 into factorial 2n minus 3 upon factorial 2n minus 3 is equal to 100 into n minus 1 factorial n minus 2 upon factorial n minus 2. ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग पार्ट हमें बचेगा 2n minus 1 2n minus 2 is equal to 100 into n minus 1. This implies ये n कैंसिल हो गया. This implies 2 into 2n minus 1 2n minus 2 4n square minus 4n minus 2n minus 6n plus 2 is equal to 100n minus 100. This implies 8n square minus 12n plus 4 is equal to 100n minus 100. This implies 8n square minus 100, इधर माइनस हो जाएगा, 112n प्लस 104 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा. 8 अगर कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 8 1 जा 8 8 4 जा 32 1 जा 8 8 3 जा 24 is equal to 0. This implies n square minus n minus 13n plus 13 is equal to 0, implies n minus 1 minus 13 n minus 1 is equal to 0, implies n minus 1 n minus 13 is equal to 0, implies n is equal to 1 and n is equal to 13. बिकॉज हम यहाँ पर 1 n की वैल्यू 1 हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, बिकॉज 1p2 इज़ नॉट डिफाइंड. 1 ऑब्जेक्ट्स में से हम 2 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट नहीं कर सकते. 1p2 इज़ नॉट डिफाइंड. So our answer is n is equal to 13. फिफ्थ है 16 np3 is equal to 13 into n plus 1 p3. 16 into factorial n upon factorial n minus 3
इज इक्वल टू 13 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3. दिस इम्प्लाइज 16 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 13 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2. अब ये टर्म्स जो हैं कैंसिल हो जाएंगे. रिमेनिंग पार्ट हमें मिलेगा 16 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 13 इंटू n माइनस 1 n प्लस 1. n और n माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे. रिमेनिंग पार्ट में हमें मिलेगा 16 n माइनस 32 is equal to 13 n plus 13. This implies 16 n minus 13 and 3 n is equal to 32 plus 13 implies n is equal to 45 by 3 is equal to 15. सिक्स्थ है np4 is equal to 18 into n minus 1 p2. np4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4. दिस इज इक्वल टू 18 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 2. दिस इम्प्लाइज n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 18 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3. दिस इम्प्लाइज n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 18 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2. दिस इम्प्लाइज n square minus 3n is equal to 18 implies n square minus 3n minus 18 is equal to 0. This implies n square minus 6n plus 3n minus 18 is equal to 0. Implies n minus 6 plus 3n minus 6 is equal to 0. Implies n minus 6n plus 3 is equal to 0. So our answer is equal to 6 बिकॉज नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है. थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट है np5 is to n minus 1 p4 is equal to 6 is to 1. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ कंसिडर करते हैं. np5 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 अपॉन रेस्ट इस टू का मतलब है अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 is to 1. दिस इम्प्लाइज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5. ये न्यूमरेटर में चला गया. सबसे नीचे जो है ये टर्म n माइनस 1 माइनस 4 n माइनस 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1. फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 और ये है हमारे पास फैक्टोरियल n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 is to 1. दिस इम्प्लाइज ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. n इज इक्वल टू 6. 8th है np4 is to n minus 1 p4 is equal to 5 is to 3 n is greater than 4. np4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 is to 3. दिस इम्प्लाइज n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं. फैक्टोरियल n माइनस 4 को इंटू ये न्यूमरेटर में चला गया फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 is to 3. टर्म्स कैंसिल कर देंगे.
अब रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचा है n अपॉन n माइनस 4 इज इक्वल टू 5/3. दिस implies 3n is equal to 5n minus 20 implies 5n minus 3n 2n minus 20 is equal to 0 implies n minus 10 is equal to 0 n is equal to 10 और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि n is greater than 4. क्लियर. फिफ्थ क्वेश्चन है इफ 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr फाइंड r. 9p5 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r. दिस इम्प्लाइज फैक्टोरियल 9 कॉमन अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे यहाँ से 1 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4 को हम क्या लिख सकते थे 9 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 5 जो कॉमन निकल गया इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r. फैक्टोरियल 9 कैंसिल. दिस इम्प्लाइज 9 माइनस 4 5 तो 5 अपॉन 5 ये इधर राइट हैंड साइड की तरफ फैक्टोरियल 9 माइनस 5 दैट इज फैक्टोरियल 4 1 plus 1 is equal to 10 upon factorial 10 minus r. This implies 1 plus 1 2. फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी 4 3 जा 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r. 2 5 जा 10. दिस इम्प्लाइज फैक्टोरियल 10 माइनस r इज इक्वल टू is equal to 4 3 जा 12 2 जा 24 इंटू 5 24 इंटू 5 5 4 जा 20 5 2 जा 10 और 2 120. दिस इम्प्लाइज फैक्टोरियल 10 माइनस r को हम लिख सकते हैं 10 माइनस r इंटू 10 माइनस r माइनस 1 इंटू 10 माइनस r माइनस 2 अप टू 1 इज इक्वल टू 120. किसका फैक्टोरियल है 5 का फैक्टोरियल है तो 120 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 को हम लिख सकते हैं. हमें यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल गया 10 माइनस r 10 माइनस 1 9 माइनस r 8 माइनस r अप टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम देखें r से कंपेयर करें 10 माइनस 5 9 माइनस 5 8 माइनस 5 7 माइनस 5 अप टू 1. दिस इम्प्लाइज कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड r इज इक्वल टू 5. सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड r इफ 10pr प्लस 1 is to 11pr is equal to 30 raised to 11. तो ये है 10pr प्लस 1 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r प्लस 1 is to फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस r is equal to 30 is to 11. This implies factorial 10 upon factorial 10 minus r minus 1 that is factorial 9 minus r into factorial 11 minus r upon 11 into factorial 10 is equal to 30 is to 11. This implies factorial 10 cancel
11 माइनस आर को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल को 11 माइनस आर 10 माइनस आर फैक्टोरियल 9 माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस आर इज इक्वल टू 30:11। ये टर्म कैंसिल और डिनोमिनेटर में हमारे पास 11। दिस इम्प्लाइज ये 11 और ये 11 कैंसिल्ड। दिस इम्प्लाइज 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इज इक्वल टू 30। अब इसको इजी करेंगे टर्म को 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इज इक्वल टू 30। दिस इम्प्लाइज 11 10 जा 110 माइनस 11r माइनस 10r 21r प्लस r स्क्वायर माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज r स्क्वायर माइनस 21r प्लस 110 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 80 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर माइनस 16r माइनस 5r प्लस 80 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज r माइनस 16 माइनस 5 r माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 16 एंड r इज इक्वल टू 5। अब हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे वैल्यू r इज इक्वल टू 16 एंड r इज इक्वल टू 5, मगर यहाँ पर 11pr इज नॉट पॉसिबल बिकॉज r कैन नॉट बी ग्रेटर देन n, सो आवर आंसर इज r इज इक्वल टू 5। सेवेंथ क्वेश्चन है इफ 56pr plus 6 is to 54pr plus 3 is equal to 30,800 is to 1. Find r. So we can write 56 factorial upon factorial 56 minus r plus 6 is to factorial 54 upon factorial 54 minus r plus 3 is equal to 30,800 is to 1. This implies factorial 56 को हम लिख सकते हैं 56 into 55 into factorial 54 upon 56 minus r minus 6, 56 में से 6 गए 50 minus r into 54 में से 3 माइनस करेंगे 51 का फैक्टोरियल बचेगा 51 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 54 is equal to 30,800. This term gets cancelled and we have 56 into 55 upon factorial 50 minus r into 51 minus r into factorial 50 minus r. This term gets cancelled and we have remaining part 30,800. So we have we have 56 into 55 into 51 minus r is equal to, इसको जब हम फैक्टोराइज करेंगे तो हमें टर्म्स जो मिलेंगे उनमें हमें इस तरह से टर्म्स मिलेंगे 10 into 56 into 55। जब इसको फैक्टोराइज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 and 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 2 जा 2 5, 5 3 जा 15, 8 and 5 3 जा 15 42, 5 8 जा 40 25, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 and 5 7 जा 35 and 7 से हो जाएगा ये 7 1 जा 7 7
तो यहाँ पर इन टर्म्स को अगर हम देखें तो क्या है ये 56, 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, 55, 11, 5 जा 55। अब ये रिमेनिंग जो टर्म है 5 2 जा 10। सो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। इम्प्लाइज 51 माइनस आर इज इक्वल टू 10, इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 51 माइनस 10 is equal to 41 is the answer. 8th question है find n if 2n minus 1 p n is to 2n plus 1 p n minus 1 is equal to 22 is to 7। तो इसको इस टर्म को कंसीडर करते हैं 2n minus 1 फैक्टोरियल 2n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n minus 1 minus n is to factorial 2n plus 1 upon factorial 2n plus 1 minus n minus 1 is equal to 22 by 7. This implies factorial 2n minus 1 upon 2n minus n factorial n minus 1 into 2n minus n and 1 minus minus 1 2, that is n plus 2 factorial n plus 2 अपॉन फैक्टोरियल 2n plus 1 को हम लिख सकते हैं 2n plus 1 into 2n into factorial 2n minus 1 is equal to 22 by 7। अब यहाँ से कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं? ये 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 को हम लिख सकते हैं n प्लस 2 n प्लस 1 n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन 2n इंटू 2n प्लस 1। अब ये टर्म कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 22 अपॉन 7। दिस इम्प्लाइज n गेट्स कैंसिल्ड। वी हैव n plus 2 into n plus 1, n square plus n plus 2 and 3n plus 2 upon 2 2 जा 4n plus 2 is equal to 22 by 7. This implies, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 7n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 14 is equal to 22 4 जा 88 n plus 44। दिस implies 7n स्क्वायर माइनस 88 में से 21 गए 67n माइनस 30 is equal to 0। implies 7n स्क्वायर माइनस 17n plus 3n minus 30 is equal to 0 implies 7n common n minus 10 plus 3 n minus 10 is equal to 0 implies n minus 10 7n plus 3 is equal to 0 implies n is equal to 10 and n is equal to minus 3 by 7। क्योंकि फैक्ट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है और इस तरह के नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। सो आवर आंसर विल बी n इज इक्वल टू 10।